एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिप्रेप। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट फॉर द ईयर 2025, दैट इज़ जुलाई 2024 के सेशन के, जो अभी आपको मार्च 2025 में सबमिट करने हैं। सो इस असाइनमेंट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है BHIE 145, सम एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1789 to 1945। सो ये जो असाइनमेंट है दिस इज़ फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ BAG प्रोग्राम, उनके थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन सॉल्व्ड असाइनमेंट मिलेगा आपको इस असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका। सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर वीडियो। सो कमिंग टू द क्वेश्चन पेपर, so before continuing the video, make sure to check your subject code, that is BHIE 145। so ये जो subject है that this assignment is of 100 marks का है ये, and ये 3 parts में divided है, that is assignment 1, 2 and 3। जो assignment 1 है that is of 20 marks each, जिसमें 2 question है। assignment 2 is has 3 question है उसमें, और जो 10 मार्क्स ईच है। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें एक चॉइस भी दी हुई है, जो मैंने किया है आगे आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और दूसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन में दिया है वो करना है, सो दैट्स योर चॉइस। असाइनमेंट 3 में दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस, दे आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। सो दिस इज़ द असाइनमेंट, और ये टोटल 100 मार्क्स का है। आपको प्रॉपर इनको A4 साइज शीट पे करना है, जिसमें आपको दोनों लेफ्ट साइड में 4 सेंटीमीटर की मार्जिन ड्रॉ करनी है, और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखने हैं, ब्लैक से क्वेश्चंस लिखने हैं। और क्वेश्चंस लिखने आंसर शीट में बहुत ज़रूरी है, भले ही आप ये जो असाइनमेंट देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये आपको अटैच करना है, उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस लिखने हैं अपनी आंसर शीट में। सो लेट्स सी द आंसर्स। Let's start with the solutions. So our first question here is for the subject code BHIE 145, some aspects of European history 1789 to 1945. First question, what were the causes which led France to the revolutionary overthrow of ancient regime? So firstly we'll write introduction, then some factors which contributed to this momentous event are social inequality, then its subpoints. This is the second page. Make sure to write page numbers on the top of the page. Make sure to draw margins on the left side of 4 centimeter on each sheet. Then here we have our second point, that is economic hardship. Here is the next page, third page. For 20 marks question, at least you have to write 4 to 5 pages, because the answer requires at least 500 words. You have to write your answers within word limit, but still your answers should be a bit lengthy according to your maximum marks, that is 20 for this first question. Then third point is political absolutism. Then we have our fourth major point, that is enlightenment ideas. Make sure कि आप अपने answers को paragraph में लिखें, and in bullet points and in subheadings, so that your answer is structured and presentable. Next point is weak leadership. Here you have to write about Louis XVI, जिसकी leadership काफ़ी weak रही थी. Then our sixth major point is Estate General. Here is the 5th page, and this is the last one for this answer, the storming Bastille. Then you have to write conclusion, जैसे कि starting में introduction लिखा था, तो conclusion लिखना लास्ट में, kind of summary. Coming to second question, why did 1848 is considered as the age of masses in Europe? Describe the events of revolution of 1848 in Europe. So our answer starts with an introduction, and then the first point, unprecedented participation, shared grievances, ये सारी सब हेडिंग्स हैं, और उसके बाद जो शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है पॉइंट्स को। नेक्स्ट पेज, 7th पेज, दैट इज अगला पॉइंट है राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। फिर हम लिखेंगे इवेंट्स के बारे में ऑफ 1848 रेवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स हुए थे। फर्स्टली हम फ्रांस के बारे में लिखेंगे, फ्रांस का फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो हुआ था। देन वी विल राइट अबाउट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में जो प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद जर्मनी, एंड देन इटली। फिर आता है हमारा 9th पेज, जिसमें हम बात करेंगे आउटकम्स और सिग्निफिकेंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंक्लूजन लिखा, हेयर विल राइट अबाउट क्या क्या आउटकम्स रहे 1848 रेवोल्यूशन के, और क्यों वो इतना ज़रूरी था हमारी हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रही उसकी। एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे उसका। सो दैट्स इट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन।
एक्सप्लेन द मेजर आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स इन 18th सेंचुरी। सो 18th सेंचुरी में जो जो थिंकर्स एमर्ज हुए थे उनके बारे में लिखना है हमें। फर्स्टली अगैन विल राइट सम इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, उसके बाद की आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, उनका रीज़न क्या होता था, रैशनलिज्म, फिर इंडिविजुअलिज्म और नेचुरल राइट्स, देन स्केप्टिसिज्म एंड एम्प्रिसिज्म, उसके बाद प्रोग्रेस एंड परफेक्टिबिलिटी, टॉलरेंस एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, and then limited government and social contract. So these are the subheadings. Make sure to draw margin on the left side of 4 centimeter as it's given in the instructions. Clearly mentioned है ये guidelines में for making your assignment. Otherwise it may get rejected also. Then next subheading is separation of powers, education and reform. फिर हम कुछ thinkers के नाम के साथ उनके बारे में लिखेंगे। नोटेबल एनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक, इसहाक न्यूटन, वॉल्टेयर, जीन जैक रूसो, इमैनुअल कैंट, एडम स्मिथ, थॉमस जेफरसन। फिर उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहा इस एनलाइटमेंट का, जो उनके थॉट्स थे, उनके व्यू पॉइंट्स एमर्ज हुए 18th सेंचुरी में, उसका हमारी सोसाइटी पे, हमारे अपकमिंग वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द अटेम्प्ट्स ऑफ नेपोलियन गवर्नमेंट टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन इन फ्रांस बिटवीन 1799 एंड 1815। So नेपोलियन गवर्नमेंट का क्या हाउ डिड दे अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशन, जो उस टाइम पे फ्रांस में सिचुएशन थी उसके साथ उन्होंने हाउ डिड द ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन राइज। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन ब्यूरोक्रेसी, एंड हेयर विल राइट अबाउट मेरिटोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन का बड़ा रोल रहा, उसके बाद लीगल रिफॉर्म, एंड देन एजुकेशन, स्टेट कंट्रोल, सेकेंडरी एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन साइंस, और क्या इम्पैक्ट था, और कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में। और ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ ऑफ 10 मार्क्स, सो आई गेस उसको अराउंड 250 वर्ड्स में लिखना है, सो दिस आंसर इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट एलैबोरेट द Gerson-Kron मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो विल राइट अबाउट द Gerson-Kron मॉडल एंड देन की एस्पेक्ट्स, रिलेटिव बैकवर्डनेस, ग्रेट स्पॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा, bank, state, and this question is also of 10 marks, so this answer is sufficient according to the word limit. अब आते हैं असाइनमेंट थर्ड पे। सो आपकी BHIE 145 सब्जेक्ट बोर्ड असाइनमेंट में दैट इज़ यूरोपियन हिस्ट्री से जो रिलेटेड है 3 पार्ट्स है, एंड दिस इज हम थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, और थर्ड पार्ट में सारे क्वेश्चंस आर ऑफ 6 मार्क्स ईच, सो 1 पेज इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 6 इज थर्मिडोरियन रिपब्लिक के बारे में लिखना है। इसमें मेनली हमें शॉर्ट नोट्स टाइप आंसर लिखने हैं। सो क्वेश्चन में सीधा हमें यही टॉपिक दिया हुआ है किसके बारे में लिखना है। सो हेयर वी राइट, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, देन हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पीरियड, एंड ऑफ टेरर, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, देन सोशल चेंजेस, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, देन एंड ऑफ द थर्मिडोरियन रिपब्लिक, वो हाउ इट इवेंचुअली केम टू एन एंड, देन द थर्ड समरी। 7th क्वेश्चन में हमें लेस फेयर के बारे में लिखना है। सो उसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे, फ्री मार्केट, इंडिविजुअल लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी 1815 to 1870। सो इंट्रोडक्शन, और फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, अर्ली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसके बारे में लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रोटो नेशनलिज्म, उसके कुछ की करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, लिमिटेड टेरिटोरियल फोकस, एम्फेसिस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल। क्वेश्चन नंबर 10 सेज आइडियोलॉजिकली डिफाइंड कैंप्स इन वर्ल्ड वॉर्स। सो जो आइडियोलॉजिकली डिफाइंड कैंप्स थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं उनके बारे में लिखना है। सो हेयर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर 1, उसकी सेंट्रल पावर और एलीट पावर, देन वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 to 1945 तक हुआ, उसकी एक्सेस पावर और एलीट पावर। So that's it for this answer. This is of 6 marks and the answer is sufficient according to the word limit.